हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस पार्ट 11। कॉन्स्टिट्यूशंस पार्ट 11, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1, विधायी संबंधी विधायी शक्तियों का वितरण। चैप्टर फर्स्ट, legislative relations, distribution of legislative powers. Distribution of legislative powers. 245 article. Constitution's article 245 extend to 245 articles extent of laws made by parliament and by the legislatures of states. Number 1, subject to the provisions of this constitution. 245 article says extent of laws made by parliament and by the legislatures of states. Number 1, subject to the provisions of this constitution, parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state. क्या कहा जा रहा है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार के बारे में। सब्जेक्ट टू दी provisions of this constitution, parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state. Number 2, no law made by parliament shall be deemed to be invalid or invalid on the ground that it would have extraterritorial operation. Number 2, no law made by parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extraterritorial operation. 246 article says subject matters. 246 article says subject matter of laws made by parliament and by the legislatures of state. 246 article says subject matter of laws made by parliament and by the legislatures of states. Number 1, notwithstanding anything. In clauses 2nd and 3rd, parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list first in the 7th schedule in this constitution referred to as the union list. Number 2, notwithstanding anything in clause 3rd, parliament and subject to clause 1st, the legislature of any state also have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 3rd in the 7th schedule in this constitution referred to as the concurrent list. Number 3rd, subject to clauses 1st and 2nd, the legislature of any state has exclusive power to make laws for such state or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in list 2nd in the 7th schedule in this constitution referred to as the state list. Number 4, Parliament has power to make laws with respect to any matter for any part of the territory of India not included in a state, notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the state list. तो पार्ट 11th के अंदर मैंने आज 3 अनुच्छेद को पढ़ा है। अनुच्छेद 245, 246 और 247। सॉरी, तो आज मैंने 2 अनुच्छेदों को इसमें पढ़ा है।
अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। संविधान का भाग 11, भारत के संविधान का भाग 11 संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 विधायी संबंधी विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 245 संसद के द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार के बारे में 245 अनुच्छेद वर्णन करता है। नंबर 1, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो संसद है वो उसकी वो सर्वोपरि है भारत के लिए। संसद क्या है, संपूर्ण भारत के लिए, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग या भारत क्षेत्र के संपूर्ण। संसद क्या करेगी, संसद को वे शक्ति है, ये अनुच्छेद देता है, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। और किसी राज्य का विधानमंडल, और जो राज्य का विधानमंडल है उसको शक्ति दी जाती है कि वह राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। यानी संसद को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए विधि बनाने का जो अधिकार या जो शक्तियां दी गई हैं, और जो राज्य का विधानमंडल है वो राज्य में बना सकेगा विधि या उसके किसी भाग में। नंबर 2, संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर विधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होगा। ये कहा जा रहा है कि संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि, संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून इस आधार पर विधि मान्य इनवैलिड नहीं किया जाएगा, इनवैलिड घोषित अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होगा, कि उसमें कोई बदलाव होगा। अनुच्छेद 246 संसद के द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में बात की जा रही है अनुच्छेद 246 में। संविधान के अनुच्छेद 246 में वर्णन किया जा रहा है कि संसद के द्वारा और राज्यों के द्वारा, यानी जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा और राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनके बारे में, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, उनके द्वारा जो भी विधियों की विषय वस्तु उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि नंबर का खंड 2 और खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को 7वीं अनुसूची में, संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 1 में, जिसे संविधान में संघ सूची कहा गया है, संसद की जो 7वीं अनुसूची है उसकी सूची 1, जिसे इस संविधान में संघ सूची कहा गया है, यूनियन लिस्ट, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। जो 7वीं अनुसूची है उसकी जो पहली अनुसूची है जिसको संघ सूची कहा जाता है, यूनियन लिस्ट, उसको अनन्य बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं विधि बनाने के लिए, उसको बहुत सारी शक्तियां, अपरंपार शक्तियां दी गई हैं। किसको? उस संघ सूची को। नंबर 2, खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को और खंड 1 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को भी 7वीं अनुसूची की सूची 3 में, जिसे संविधान में समवर्ती सूची कहा गया है,
तीन प्रकार की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट एंड दूसरा कौन सा है, यूनियन लिस्ट एंड थर्ड में जो 7th शेड्यूल है उसमें कंकरेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है। और कंकरेंट लिस्ट और तो अभी मैं इसकी बात कर रही हूँ कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो संसद को जो सबसे ज़्यादा जो संसद जो विधि बनाने की जो सबसे ज़्यादा अपरंपार शक्ति प्रदान करता है वो है संविधान की संघ सूची। 7वीं अनुसूची की सूची एक यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची को अनंत शक्तियाँ प्राप्त है। नंबर 2, खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को और खंड 1 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को भी 7वीं अनुसूची की सूची 3 में, जिसे संविधान में समवर्ती सूची कहा गया है। प्रगणित किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। नंबर 3, खंड 1 और खंड 2 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की सूची 2 में, जिसे संविधान में राज्य सूची कहा गया है। राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 अनुसूचियां हैं, 3 तरह की अनुसूचियां हैं, 3 तरह की अनुसूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सबसे ज़्यादा जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई हैं यूनियन लिस्ट को यानी संघ सूची को। नंबर 4, संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है। संसद को भारत के ऐसे राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए भी शक्ति प्राप्त है या वे कानून बना सकेगा जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है। किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को है, चाहे वे विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों न हो, उसमें भी वो कानून बनाने की शक्ति संसद को है, यानी यूनियन लिस्ट को। तो आज मैं ये 2 अनुच्छेद ही पढ़ूंगी, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 247, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति के बारे में। फिर पढ़ूंगी 248, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ यानी 247 आर्टिकल, power of parliament to provide for the establishment of certain additional courts. 248 article, residuary powers of legislature, residuary powers of legislation के बारे में कल मैं पढ़ूंगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दे इजाज़त। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।